केनिया के अंदर शहीद अरशद शरीफ की शहादत, कैन यू टेल अस एनीथिंग अबाउट इट? मुझे पता है कि व्हाट ही वाज वर्किंग ऑन। आई हैव हर्ड एज फार एज कि उसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, जिसने वो एक्शन किया ही वाज अ क्रिमिनल एंटिटी के साथ, और उसके अरशद शरीफ के साथ पुराने ताल्लुकात थे। This might be another one of your operations. Is that the case? There's a piece of puzzle that is missing. I mean, why would you do it? ISI, MI, IB, किसने आपको रखा? उनको वही शक था जो आपको है कि आप किसी या तो मिशन पे हैं और वो मुझे ब्रेक नहीं कर पाए। हालांकि मेरा पॉलीग्राफ भी लिया उन्होंने, 3 दफा मेरा पॉलीग्राफ हुआ डिफरेंट तरीके से। ISI कहाँ स्टैंड करता है in comparison to the others? मोसाद हो, रॉ, CIA, FBI? मुझसे अच्छे नहीं है काम है, ये मुझे पता है। मतलब मेरे 10% भी नहीं है काम है। I don't know how good they are. I had to see them in a field, I guess, someday. But you just said that I'll get to know once I meet them in the field. Since you're not in the field yourself, why did you say that? बात अच्छी पकड़ी आपने, by the way. At any point of time, were you forced to pull the trigger? ये सवाल का जवाब मुझसे पाकिस्तान में भी किया था उन लोगों ने। Nobody will ever admit what they did. Did you role play with Al-Qaeda as well? And for how long? कभी फुटबॉल खेलने का इत्तेफाक हुआ? तालिबान के साथ भी engagement रही? TTP के साथ भी किया, तहरीक तालिबान के साथ भी और अफगान तालिबान के साथ भी। What comes to your mind जब मैं ये दोनों चीजें बोलता हूँ, 9/11 और उसामा बिन लादेन? पाकिस्तानी एजेंसीज के कुछ इंटेलिजेंस लीक्स हुए। He was very good at what he did. अगर आप कहेंगे इंटेलिजेंस तो फिर आप उसकी क्रेडिबिलिटी को कम कर देते हैं। नून लीग की गवर्नमेंट होती है, थोड़ा हाथ हौला रखा जाता है। अभी आपने नून लीग की हुकूमत का बात किया, तो नून की ही हुकूमत है जब साल 2024 से लेकर 2025 के दरमियान में देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 73% व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज। आपके पास सिर्फ एक तालिबान अलकायदा प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक्सेंट जो है कहाँ का है ये? आप ये बता सके, पूछना चाह रहा है कि मैं कहाँ से ताल्लुक रखता हूँ? मुझे तो बड़ी डॉक्टर जाकिर नाइक वाली वाइब आई है आपकी 2-4 लफ्जों से। Bismillahirrahmanirrahim. Hello, assalamu alaikum everyone. मैं हूँ इस्माइल कासिम and I welcome you all to a very special episode here at Na. Today we are joined by a very interesting man. I say interesting because उनकी life की story जो है that is very interesting. Not often that you see intelligence officers roaming around and interviews देते हुए अपनी life story बताते हुए. But in this episode, this is the case. We are joined by Kamran Faridi. So thank you so much for your time. You're very welcome. How are you doing, brother? I'm doing pretty well. Very excited to have you over here because, like I stated, it's not often that you see intelligence officers on podcasts every other day. Well, X let be the right way, because when I was on, nobody knew about me, किसी को पता नहीं था. So since I've been off for that long, then people got to find out. So there was 30 years of silence, and then I become public. All right. So you said X. Would it be all right अगर मैं यहाँ पे स्टेट करूँ कि वो जो आपने X बोला है उसके ऊपर there is a question mark? I kept looking at you, I kept reading into your shows, and I could not just make 2 + 2 happen. मुझे there was a piece of puzzle that was missing, and I thought, why not? I'll just ask you right up. Listen. I really want you to humbly. I really want you to ask anything and everything. There is no hesitation on my end. That's what I always tell when I give an interview. I talk to brothers. I always tell them, एक चीज का हमेशा बोलता हूँ, please, throw me the toughest thing. Don't worry about my feelings. Don't get hurt. I'm not a 4-year-old. Throw me the roughest thing, and I'll have it with you. So, otherwise, so please, by all means, I understand. And so add a note to it. Today we were talking about it earlier. आयान बैठे थे, तो मेरी टीम बैठी हुई थी, और उसमें से एक लड़का मुझे बोलता है, भाईजान, I don't believe you're still an ex. I mean, literally the guy who know me for a few months. I'm like, okay, you too? All right, good. So by all means, count me in that list too, because I don't believe you're an ex. I believe this is another one of your operations, और शायद आपका role change हो गया 30 years of silence के बाद. This might be another one of your operations. Is that the case? Are you telling me I'm getting old? That's what it is. I think the gray beard now, I can't jumping in a nine. Yeah, it's not the case. I'm being very honest with you. My career, here's let me give you I'm taking an educated answer. मैं पिछले let's say 20-22 साल से मैं ओवरसीज ऑपरेट कर रहा हूँ, यानी इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहा हूँ, दुनिया के हर मुल्क में, यानी मिडल ईस्ट से लेके अफ्रीका से हर जगह पर. तो मेरे लिए बहुत आसान होता है, या मेरी जैसी सूरत वाले के लिए बहुत आसान होता है इजीली स्लिप हो जाना किसी कंट्री में. मैं ब्राजील स्लिप हुआ, या पैराग्वे स्लिप हो रहा हूँ, या पाकिस्तान ईरान के रास्ते स्लिप हो रहा हूँ, या अफगानिस्तान स्लिप हो रहा हूँ ईरान वाले राउट से ही. तो कई जगह बहुत आसान होता है. लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को जब ये सवाल करते हैं, आपका वाला सवाल, कि यार मुझे जरूरत क्या, अगर मैं
आके ऐलान करता हूँ यहाँ पे कि मेरा ताल्लुक किसी ऐसी एजेंसी के साथ या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है ऑपरेट करना। अगर मैं अब मिसाल देता हूँ मैं आपको, मैं यूएई उतरा हूँ। जब मैं यूएई उतरा तो मैंने पास यहाँ पे ऑटोमेटेड लाइन होती है, मेरे पासपोर्ट पे रेड बत्ती जल गई सीधा। वो मेरी अल्लाह यार, ये मुझे पता था होना ही है। आ गए थे मेहमान रिसीव करने आए हुए थे मुझे, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाउ यू डूइंग, आप किसी काम से आए हुए हैं? तो अब उनको चेहरा पता है। लेकिन अगर ये 10 साल पहले होता, जो कि मैं पहले करता रहा हूं, तो कभी ऐसी होता ही नहीं है। मैं बांग्लादेश गया हूं या भूटान गया हूं, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। सो व्हाई वुड आई टेक अ प्रॉब्लम? सो बट द क्वेश्चन इज अ क्वेश्न, सो आई विल ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट इजियर फॉर यू गाइस। All right, interesting. I'm still not satisfied with the answer. Still, and there's a No, piece no, of all good. Keep on coming, brother. I'm good. I'm good. I want you there's, to do it as much as you can. there's a piece of puzzle that is missing. I mean, why would you do it? I mean, why after all these years would you want? I mean, I listened to all of your stories and I was pretty fascinated by it. I mean, and same is the case with every other individual in the country, especially somebody who's hailing from third world countries such as ours. तो हमारे लिए तो ये डे इन डे आउट एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जिसके लिए हम इंट्रीग्ड होते हैं. बट अगेन वही वाला क्वेश्चन, वाई नाउ? आई मीन वन थिंग हो सकती है इसके अलावा, मे बी दिस इज अ फेल सेफ ऑपरेशन, यू वांट टू गिव आउट अ मैसेज दैट इफ यू कम आफ्टर मी, I'm gonna come after you, and this is what I'm doing. I mean, you have told a lot of dirty secrets over here on the shows, and still no fire back. Why is that? Or are you waiting for something to happen? देखिए, दो सूरतें हैं। मैं आपको दो जवाब अलग तरह से बताऊं। जब ये शुरू हुई, जब मैंने पॉडकास्ट किया तो वो तो नेम क्लीन करने के लिए किया। तो जब मैं जेल चला गया था अमेरिका में, एज वी ऑल नो, तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे पीछे से कई प्रोग्राम ऐसे हुए। कई एक प्रोग्राम में मुझे बोला है मोबाइल फोन चोरी का, उस 91 में मोबाइल थे भी नहीं। एक प्रोग्राम मेरा दिखा आया है कि ये मोबाइल फोन छीनता था 1990 में पाकिस्तान में, या 80s में, जब मोबाइल का कोई तस्वर भी नहीं था दुनिया में। तो ऐसी कई चीजें थी कि ये या तो ये झोपड़पट्टी में रहता था, या डकैत था, या फलाना था ढिमकाना था। वो ऐसी कई बातें सर्कुलेट कर रही थी। कई शोज हैं, आप डिग इन करेंगे आपको मिल जाएंगे। एक फैमिली मेरी बहुत नाराज थी इस बात के ऊपर। तो मैंने रफ्तार को जब कॉल किया, मेरी पहली पॉडकास्ट ऑफिशियल रफ्तार के साथ थी, तो उस वक्त तो सिर्फ इतना था कि मुझे उनसे अपना नेम क्लियर करना था। मैंने कहा यार मैं अपना बताता हूँ, हु एम आई, यानी क्योंकि 10 शो ऑलरेडी हो चुके थे। इवन जियो न्यूज ने मेरा ख्याल है अली मुर्तजा नाम है उनका, उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी जियो मुर्तजा के ऊपर, वहाब है, मेन स्ट्रीम पे चली। मुर्तजा मुर्तजा जी। वहाब है. और जी, तो वो ये सारी सारी कहानी तो चल रही थी। तो मुझे एक रफ्तार से जब मैंने बात की, और मैंने मौजम से मेरी डायरेक्ट बात हुई, मैंने कहा मौजम मुझे अपना नाम क्लियर करना। उसने कहा यार सिर्फ अगर आप हमको ये बेसिक दे देंगे तो मैं मजा नहीं आएगा, मैं तो मसाला चाहिए। नहीं, आई वी नो द अदर 30% ऑफ इट टू। अदर अब मैं कभी 50% नहीं बोलूंगा क्योंकि वो 30%। मैंने बोला ठीक है, आई विल गिव यू समथिंग टू पोस्ट इट, यानी आपके लिए भी कुछ इंट्रीग होगा, कुछ मेरी बात क्लियर हो जाएगी। सो फॉर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मैंने मौजम के साथ पहला प्रोग्राम किया। अच्छा, उसका फीडबैक ऑफ कोर्स ऐसा आया कि हाँ हाँ हो गई पूरी जगह पे, एंड आई स्टार्ट लाइकिंग इट, क्योंकि एक अननोन जिंदगी में गुजारा था। ये एक पोर्शन उसका, दिस हाउ ऑल स्टार्टेड। दूसरी बात, जब मैंने ये प्रोग्राम किया था तो मैंने, उससे पहले मेरे लॉयर्स होते हैं, जेफरी चैब्रो नाम है, वेरी वेल नोन लॉयर ऑफ न्यूयॉर्क, जिन्होंने मेरा केस लड़ा। उसने मुझे एक बात कही थी। मैंने उसको पूछा कि यार मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो इज इट अलाउ, यानी ओके है तुम्हारी तरफ से, कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम यूएस अटॉर्नी ऑफिस? उन्होंने कहा कि हाँ, एज लॉन्ग एज तुम बिल्कुल जो पर्सनल, जिसको एक होती है सील्ड फाइल हमारी होती है, वो सील्ड इंफॉर्मेशन नहीं दो, लेकिन जो ग्रे एरिया होता है, जो सेमी पब्लिक है, जो हो चुके हैं केसेस, ओपन केसेस हैं, वो आप दे सकते हैं। लेकिन उसने एक कंडीशन, उसने मुझे कहा कि मेक श्योर करना कि ग्रे एरिया के दरमियान, सून यू मूव टू द डार्क साइड ऑफ इट, यू गोना बी इन ट्रबल। तो और उसके अलावा एक और बात, मेरी एक किताब मैंने लिखी थी जेल में, द स्पाई हु न्यू टू मच, अभी तक रिलीज नहीं हुई है फॉर सेम रीजन, अभी तक वो रिलीज नहीं हो पा रही है। तो मेरी जो को ऑथर है, उसका नाम है कैथी स्कॉट क्लार्क, वेरी वेल नोन ब्रिटिश। उसने मुझे ये कहा, उसने मशवरा मुझे ये दिया, और मिडिल ईस्ट साइन ने भी मुझे ये कहा कि आप प्लीज थोड़ी बहुत बात जरूर बाहर करें, क्योंकि आपके ऊपर जो जो एक लाइफ, एक अननोन आदमी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती, एक छुपे हुए आदमी को इजी टारगेट होता है। सो आप थोड़ा सा पब्लिक आई में आ जाते हो, तो कुछ लोग जो आपको हिट करना चाहेंगे या चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टारगेट हो जाओगे आप, क्योंकि वंस यू इन पब्लिक आई, पीपल नो अबाउट यू, स्टोरीज गेट बिगर। तो उसके बाद मिडिल ईस्ट आई ने स्टोरी की, और कई और मिडिल ईस्ट अल जजीरा से भी हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स से हुई। तो आई बिकम अ नोन फिगर। तो मुझे पता है कि मेरे जैसे काम के लिए थोड़ी सी लाइफ की कुछ एक गारंटीज चाहिए होती हैं। तो इट्स बिट लिटिल बिट नाउ डिफिकल्ट फॉर द पीपल हु वांट टू हर्ट मी, उनके लिए अब इतना आसान नहीं है, बिकॉज अब लोगों को पता है कहानी क्या है। सो दिस इज the all what I can tell you about it.
Still, if there's something missing, go ahead, hit me with it. ऑलराइट, आपने मुझे फिर आपने मुझे ग्रे एरिया में घुमा के ना फिर वापस दरवाजा दिखा दिया। नहीं, आप दिखाइए जरा, मसला ही नहीं है। तो हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी। लेकिन नो इश्यूज एट ऑल। मूविंग ऑन, आप अभी यहाँ पे पाकिस्तान आप आए और आपको वेलकम करने के लिए लोग नहीं थे जिन्होंने आपको वेलकम किया, बल्कि आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वेलकम किया। आपको 4 महीने के लिए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एब्सोल्युटली अरेस्ट करके रखा गया। ISI, MI, IB, किसने आपको रखा, और व्हाट वाज द एक्चुअल कोर पर्पस ऑफ देम होल्डिंग यू ओवर हियर, एंड देन छोड़ भी दिया और वापस भेज दिया? जी। तो सो यू नो, एक मैं आपके चैनल के तहत, ये शायद एक थोड़ा सा पहले इस बात को जवाब देने से पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूं। मेरे जो बेल की जो कंडीशन थी, या मेरी जो रिलीज की कंडीशन थी, उसमें एक कंडीशन ये थी कि मुझसे अमेरिकन नेशनलिटी वापस ले ली जाएगी। ये एक मेरी कंडीशन थी उसमें, यानी जज की तरफ से ये ऑर्डर था, कैन यू गेट माई पासपोर्ट। हुआ ये कि जब मैं निकल रहा था जेल से और जब मैं रिलीज कर दिया तो मैं स्टिल प्रोबेशन पे था। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट पहुंचने के वक्त, यानी जब मुझे पाकिस्तान की फ्लाइट लेनी थी, उस वक्त प्रोबेशन मेरे साथ थी। जारी बता यूएस वाले जो काम होते हैं इदारे, वो मेरे साथ थे कि मुझे मुझे उन्होंने क्लियर कराना। सो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा और मैंने पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए उनके हाथ में दिया, तो मेरा प्रोबेशन ऑफिसर, जो कि जिसकी ड्यूटी थी वो लेना, उसने बोला व्हाट यू डूइंग। मैंने बोला ये आपने मांगा था, ये पासपोर्ट आपके हवाले, मेरी बोर्डिंग आ गया मेरे हाथ में, मेरे पास अदर पासपोर्ट था मौजूद, तो मैंने वो सरेंडर करने के लिए किया। उसने वो पासपोर्ट मुझे वापस किया, मेरे हाथ में दिया, बोलता है कि कैमरन, वी डोंट वांट यू टू लीव विदाउट अ पासपोर्ट। नाउ दिस इज व्हाट इट इज। जो अगर आप ये देख रहे हो कैमरे में, ये मेरा अमेरिकन पासपोर्ट है, आई हैव इट राइट नाउ, दिस माई अमेरिकन पासपोर्ट, आई कैन शो इट यू। सो दे गेव मी माई पासपोर्ट बैक। उन्होंने मेरा पासपोर्ट मुझे वापस किया। मुझे कहा वी डोंट वांट इट, आप अगर रहना चाहते हैं तो रहिए, अगर आपको जाना है, वी वांट यू टू लीव एज अमेरिकन सिटीजन। क्यों? उनको कुछ आइडिया था कि जो शायद मुश्किलात मुझे आने वाली है मुस्तकबिल में, उनको आइडिया था, मुझे नहीं था इस बात का आइडिया, क्योंकि दे न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन बैक डोर, मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि वी वांट यू टू ट्रैवल एज अमेरिकन सिटीजन, वी डोंट वांट यू टू ट्रैवल एज एनी अदर सिटीजनशिप, बट दैट्स व्हाट वेरी नाइस। मैंने कहा यू श्योर? मैंने बोला मैं वैसे भी सरेंडर करना चाह रहा हूं, मुझे रहना नहीं है, मेरा दिल खराब हो गया अब यहाँ, आई डोंट वांट टू स्टे। बोलते अगर तुम्हें सरेंडर करना उस पासपोर्ट को, गो टू पाकिस्तान, जाने के बाद तो अपनी एम्बेसी में जाना, अमेरिकन एम्बेसी में, वहां जाके पासपोर्ट देना। अगर तुम यहां सरेंडर करोगे तो तुम्हें केस ओपन करना पड़ेगा, इट टेक्स 4 months टू रिवोक योर सिटीजनशिप, तो 4 महीने तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। यू वांट टू स्टे 4 months? मैंने बोला नहीं, मुझे जाना है। बोलता है इट्स अप टू यू, अगर तुम्हें वापस करना है, गो टू अमेरिकन एम्बेसी, रिवोक योर सिटीजनशिप, व्हाटएवर यू वांट टू डू। अल्लाह का शुक्र है या मेरी माँ की दुआ है या बहुत अच्छा हो गया कि मैं इस पासपोर्ट के साथ वहां उतरा। अगर मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट का उतरा होता तो आज मैं यहां ना बैठा होता जिंदा। मैं आपको गारंटी से ये बात कहता हूं, आई वुड हैव बीन डेड। क्यों? उसमें कोई कसर नहीं थी। अच्छा, जहां तक बात है किसने मुझे इस्तकबाल किया, अगर मैं ये कहूं किसी एजेंसी का नाम लूं तो मैं झूठ बोलूंगा। क्यों? किसी ने मुझे आइडेंटिफिकेशन दिखाई नहीं थी अपनी। अगर वो कहते, उन्होंने ना ये कहा हम ISI हैं, ना ये कहा हम MI हैं, ना ये कहा उन्होंने कि हम IB हैं, ना ये, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि वो जरूर एजेंसी जरूर, क्योंकि एयरपोर्ट के दरवाजे के बाहर अगर कोई खड़ा है तो वो कोई उठाई गिरा तो नहीं होता। दे वर वेल वेल सूटेड गाइस, वेरी वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन एंड वेरी नाइस। ऐसा नहीं तो कोई कुत्ते के बच्चे वाला चक्कर नहीं था। बड़े प्यार से उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आइए जी बैठिए। और फिर वो बड़े प्यार से करीबी ऑफिस से मुझे ले गए, वहाँ खाने का इंतजाम भी था। फिर उन्होंने मेरे कपड़े जो थे वो सारे उतरवा के जो अपने वाले दे दिए, यानी मेरे सारे ले लिए, जितना भी मेरा सामान और कपड़े थे। तो पैटर्न वही था, बहुत सारे लोग थे वहां पे, लेकिन किसी एक आदमी ने मुझे आइडेंटिफिकेशन नहीं दिखाई कि वो था क्या। तो अगर मैं ये कहूं कि वो ISI थी तो ये झूठ होगा, अगर ये कहूं MI थी तो ये झूठ होगा। मुझे आज तक ये बात नहीं पता कि वो ले जाने वाले कौन थे। मुझे वहां से वो ले गया एक सेफ हाउस के अंदर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप इतना प्यार क्यों कर रहे हैं मुझसे, मैंने ऐसी क्या खूबियां हैं मेरे अंदर कि मुझे इतनी मोहब्बत मिल रही है। कहेंगे आप कुछ दिन हमारे साथ रहिए, फिर हम लोग कुछ ब्रीफिंग करेंगे, कुछ आपसे, कुछ आपके बारे में जानना है, कुछ हमारे बारे में आप जानिएगा, ऐसे प्यार से कहते हुए। और बड़े अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल के साथ कई गाड़ियों में, और फिर एक बहुत अच्छे घर में ले जाया गया, खाने का इंतजाम वहाँ, शेफ, बटलर। मुझे बिजली जब गिरी, जब मैं कमरे में गया और सामने सामने से कुंडी बंद होने की आवाज आई, तब मुझे पता चला मैं कैद हो गया। मैं समझा कि वैसे ही को ले गए होंगे, खिलाएं पिलाएंगे, पूछेंगे भाई किस लिए आए हो, जैसे आप पूछ रहे हैं, छोड़ देंगे। उसके बाद जब वो कुंडी बंद हुई दरवाजे की तो मुझे लगा ओ हो गया। तो वो अंदर जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ मामला खराब हो गया। तो वहां फिर वो मामला उनके चलते रहे, वो सवाल किया उन्होंने, और एक दफा नहीं 26 डिफरेंट लोगों ने वो सवाल किया कि आप क्यों आए हैं,
क्योंकि यहाँ तो आपके पास तो पासपोर्ट भी आपके पास अमरीकी है, क्यों आपने छोड़ा, यहाँ तो कोई आना नहीं चाहता, यहाँ से तो लोग भाग रहे हैं। फिर मैंने वो वतन की मोहब्बत का रोना रोया जिनका उन्होंने यकीन नहीं किया, और उनको वही शक था जो आपको है कि आप किसी या तो मिशन पे हैं और वो मुझे ब्रेक नहीं कर पाए। हालांकि मेरा पॉलीग्राफ भी लिया उन्होंने, 3 दफा मेरा पॉलीग्राफ हुआ डिफरेंट तरीके से, लेकिन उन्होंने इस बात पे यकीन नहीं किया जैसे आपने नहीं किया, और उन्होंने मुझे छितर मारे। और लेकिन मेरे बाहर निकलने की छितर मतलब ऐसे नहीं, अल्लाह ना करे, बहुत प्यार से रखा। आई मीन अमेजिंग ट्रीटमेंट, आई हैट्स ऑफ टू देम, जितना प्यार उन्होंने दिया है, आई गारंटी यू आई हैव नो वर्ड्स। मैं जो अगर मेरे वेप भी अमेरिकन ला के देते थे, यार मुझे वेप पीना है ना, तो मुझे आपके लिए अमेरिकन वेप लेके आएंगे, वो छोटा मोटा नहीं। आई मीन फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स टू मैंगोज टू व्हाटएवर क्रॉप दे वाज, दे ब्रिंग इट ऑल। बट आई कोऑपरेट, जो उन्होंने पूछा मैंने बताया। लेकिन उसके बाद अगर मेरे एग्जिट होने की वजह मेरा ख्याल है मेरा अमेरिकन पासपोर्ट था, क्योंकि मैंने कहा कि यार मैं इस तरह नहीं रह सकता यहाँ पे, आई डोंट थिंक आई वांट टू। मेरी बस हो गई थी, तो मैंने उनसे कहा कि देखो मुझे यहाँ से जाना है, मेरी पहली फ्लाइट जो है वो आप मुझे जहां के लिए मिलेगी मैं ले लूंगा, एंड आई एग्जिट आउट। और ये पासपोर्ट की एक वजह है। मैंने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं मुझे आप अमेरिकन एम्बेसी छोड़ दीजिए। आई मीन एंड द स्टोरी। या दो ऑप्शन है, या तो मैं बाहर भागूं नंगे पैर और किसी गाड़ी में बैठ के अमेरिकन एम्बेसी चला जाऊं, या फिर आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ दें इज्जत के साथ, तो हमारा मामला यहाँ पे खत्म हो जाए, गो वेयर आई गो। सो फिर मैं वहां से सऊदी अरब चला गया। दैट्स द स्टोरी। Interesting. And is that the all of the story? Weren't you offered? ऐसा ने ये नहीं कहा, ये किसी और एजेंसी ये नहीं कहा हमारे लिए काम करें, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, इतनी देर गुजार ली है, व्हाई नॉट वर्क फॉर अस? नहीं देखिए, वो स्टेज 2 होता है हमेशा। इस मुझे ऐसा नहीं कि ऑफर नहीं आई है, डिफरेंट जगह से आती है ऑफर, डिफरेंट मुल्कों से आती हैं, पड़ोसी मुल्क से भी आती हैं, इधर से भी आती हैं, पड़ोस से भी आई हैं, ऐसा नहीं है नहीं आई। उनका स्टेज 1 हमेशा ये होता है, ट्रस्ट इश्यू होता है। यानी ट्रस्ट इश्यू इज लाइक कि कैन दे ट्रस्ट यू। हर एजेंसी का एक मामला होता है, कैन दे ट्रस्ट यू। और समबडी जब आप अमेरिका के लिए काम कर चुके हैं तो बहुत हार्ड होता है। यानी आप इमेजिन कीजिए कि जिन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू या इंटेरोगेट किया होगा, दैट हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ना। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होगा नॉर्मल लोगों। अमेरिका के बेस्ट, यानी अगर मैं किसी एजेंसी का रहा हूं तो पाकिस्तान के जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया, देयर हैव टू बी द क्रीम ऑफ द क्रॉप, एंड आई नो दे वर वेरी ब्रिलियंट गाइज। सो जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया वो क्रीम थे। उसके बाद जिन्होंने पॉलीग्राफ किया वो इस्लामाबाद से फ्लाई कर, पिंडी से फ्लाई करके ला जाए पॉलीग्राफर को, तो वन ऑफ द बेस्ट पॉलीग्राफर इन अ कंट्री, उसको भी लेके आए, विच आई पास द पॉलीग्राफ विद फ्लाइंग कलर्स। तो जहां तक बात है, उन्होंने फिर भी कुछ बात हजम नहीं हुई। शायद मेरे बात करने का तरीका उनको समझ, या मेरी जबान थोड़ी सी रफ है। मैंने वो जाहिर बात है, मैं जी हुजूरी तो मुझसे होती नहीं है, मैं अपनी टोन में बोलता हूं जो मेरी पसंदीदा टोन है, और वो शायद उनको पसंद शायद नहीं आई। और या मैंने बिल्कुल नीचे झुक के बात नहीं की, लेकिन क्योंकि वो मेरा एक तरीका है, तो कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो सका। अगर वो ट्रस्ट बिल्ड होता, मे बी, आई डोंट नो, मैं नजूमी नहीं हूं, हो सकता है शायद स्टेज 2 की तरफ जाता मामला। लेकिन ये कि पहली स्टेज मैंने क्लियर नहीं की, तो फिर वहां से मुझे खुरूज करना पड़ा। You've praised them a lot, the agencies. You've said कि उनका रवैया बहुत अच्छा था, although living in Pakistan and knowing what we know, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। शायद आपके साथ अच्छा एक्सेप्शनल केस हो, लेकिन आपने का रवैया बहुत अच्छा था। They were the best of the best. So overall in comparison, at an agency level, ISI कहाँ stand करता है in comparison to the others, Mossad or RAW, CIA, FBI, अगर हम वैसे overall देख रहे हो? जी, And मैं if आपको you have पहले to, तो रवैये की बात बताता हूँ। मुझे पता है कि पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह रहा कि रावी चैन, मुझे ऐसा नहीं है, नहीं पता, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी मतलब बहुत मुश्किल होता है कि मैं अपनी जबान से किसी की खामखा तारीफ करूँ। देखिए, देखिए फेयर बात, हालांकि मुझे गुस्सा होना चाहिए, चीखना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये चीज नहीं गलत है ना, नहीं लेकिन नहीं सिंस यू वर नहीं, एस्पायर, कॉन्स्टिट्यूशनली एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। मुझे दुख है इस बात का, ज्यादती हुई, एब्सोल्युटली मेरे साथ ज्यादती हुई। लेकिन मैं हमेशा, देखिए मैं तस्वीर के दोनों रुख जानता हूं। What would I have done if I was on the other side of the fence? अगर मैं वहां काम कर रहा होता तो, और अमेरिकन आता, तो what मेरा बिहेवियर क्या होता? एग्जैक्टली यही होता। सेम। सो what they did was very जहां तक बात है प्रोफेशनलिज्म की, वो इसलिए मैं उनको मैं इसलिए नहीं प्रेज कर कि दे आर द बेस्ट, यानी मुझसे अच्छे नहीं है काम में, ये मुझे पता है। मतलब मेरे 10% भी नहीं है काम में, आई नो दैट वेरी वेल। लेकिन मैं एक बात करूं, प्रोफेशनल कर्टेसी एक होती है, आप आए, इज्जत से आप बैठे, आपको खाना खिला रहे हैं, आपको, मुझे सोडा तक मेरा बाहर का आता था, यानी कोका कोला जो मेरा कैन भी था ना, वो बाहर का कैन लेके आता था कि पाकिस्तानी नहीं चाहिए। सो एक, इसलिए कि इतनी यार गोरमे शेफ आपके लिए रखा हुआ है, 3 टाइम का गोरमे शेफ आपका खाना बनाता है। मैंने जिंदगी में लग्जरी नहीं देखी भाई। मैं FBI वाले जो थे वो रेस्टोरेंट से खाना मंगवा देते थे, लेकिन गोरमे शेफ और बटलर नहीं होता था वहां पे आपके लिए, यानी बाकायदा तौर पे मेडिकल टीम पूरी मौजूद होती थी। अगर कोई मेडिकल चक्कर है, कोई फार्म नॉट फीलिंग वेल, इवन गला भी खराब है, तो देयर पीपल अवेलेबल। सो मैं प्रेज इस चीज को कर रहा हूं कि हॉस्पिटैलिटी, अमेरिका में डॉक्टर आफिया के साथ ये नहीं हुआ था।
जस्ट टू गारंटी यू दैट. तो ऐसा नहीं होता कि आप वहां अगर इस पोजीशन में है तो यू डोंट गेट ट्रीटेड लाइक दैट. इट वाज इल ट्रीटमेंट. सो जो मैं तारीफ कर रहा हूं वो ट्रीटमेंट की कर रहा हूं. ज्यादती मेरे साथ 100%. यू थिंक दे वर राइट, they were absolutely wrong. लेकिन what would I have done? I would have done the same thing if I was on the other side of the fence. और एक होती है हमारे यहाँ, कहते हैं एक जबान हमारी आदत है, उसको कहते हैं प्रोफेशनल कर्टसी. यार ये होनी चाहिए, ये होती भी है. उनमें प्रोफेशनल कर्टसी लेती कि मैं काम वाला था, यानी सेम सिमिलर वर्क टू देम, एंड दे रियलाइज कि मेरा काम जो मैं कर चुका हूं वो बहुत डिफरेंट लेवल पे है. यानी एक जारी बात है, पाकिस्तान वालों को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती ऐसी जगहों पे काम करने की. अफ्रीका, लीबिया, इराक, सीरिया, या यारी जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया में भी काम किया. सो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझसे बहुत कम है, एंड आई नो एंड दे न्यू इट. सो वो एक थोड़ा सा ये कहते हैं कि सर पे थोड़ा सा उन्होंने बिठाया शायद इस वजह से कि दे न्यू व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग. आई थिंक एक बात ये. ऑल्सो एम अ नाइस गाय, आई एम अ लाइकेबल गाय. मैं जारी बता, you know that. And I was a nice guy. I can see how you survived 30 years doing what you do. And on another side, जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो देखिए, ISI और या किसी पाकिस्तानी एजेंसीज का कंपैरिजन इसलिए एक मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होता CIA या MI6 या ऐसी किसी मोसाद के साथ करने को, कि हमारी जो एजेंसी है ये वन ऑफ द फ्यू एजेंसीज इन द वर्ल्ड जो कि मिलिट्री एजेंसीज हैं. ये आर्मी के अंडर आती हैं. ये बेसिकली जनरल हेडक्वार्टर GHQ, यानी अगर हालांकि सिविलियन ब्रांच भी है इसमें, आई न्यू फ्यू द गाइस फ्रॉम सिविलियन ब्रांच, लेकिन वो भी अंडर द कमांड ऑफ, यानी उनके जो चेन ऑफ कमांड सेशन है वो उसी तरह होता है कि वो नीचे से ऑर्डर लेते हैं, वो ऊपर तक जाता है, फिर वो हेडक्वार्टर जाता है. लेंथी प्रोसेस, आई बीन थ्रू दैट. तो जहां तक बात है प्रोफेशनलिज्म की, दे हैव इट. हाउ गुड ऑफ ऑपरेटर दे आर, आई डोंट नो हाउ गुड ऑफ, बिकॉज आई हैव नॉट सीन देम इन अ फील्ड. बट आई हैव अ प्रीटी गुड आइडिया. मे बी जिस काम वो कर रहे हैं, जिस मुल्क में, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मे बी दे आर डूइंग द राइट जॉब. क्यों? उनकी ज्यादातर डीलिंग है तो लोकल पॉपुलेशन के साथ होती है या पॉलिटिशियन के साथ होती है. और फिर जो आप मुल्क में देख रहे हैं वो आई थिंक दे आर चोजन पीपल फॉर व्हाट दे आर डूइंग. इंटरनेशनली I don't know how good they are. I had to see them in a field, I guess, someday, which I will sooner or later. I mean, kahin na kahin mulaqat hogi, then I can judge him by that. But as of now, I don't think I can size them. Are they smart? They're smart at what they do. Are they good? They are good at what they do. क्यों? देखें, मैं एक डिफरेंस बताता हूं आपको. CIA में, और आपको शायद ये बात लतीफा लगे और बहुत से लोगों को लगती है, और FBI की एक बहुत बड़ी बात ये होती है, उसमें आपको झूठ बोलने में पाबंदी होती है. आप बगैर इजाजत लिए झूठ नहीं बोल सकते. अगर मेरा सब्जेक्ट है, मैं किससे बात कर रहा हूं सोर्स से, इट्स नॉट अलाउड टू लाई टू योर इन्फॉर्मेंट, टू द सब्जेक्ट. आप अगर कमिटमेंट कर रहे हैं झूठ का और कल वो पकड़ा जाता है, यू गेट इन ट्रबल. पाकिस्तान में लग्जरी है, झूठ बोलो, गालियां दो, नंगा नहाओ, करो. तो इस काम के लिए तो फिर देयर इज अ, आई डोंट थिंक. अच्छा, द क्वेश्चन इज कैन आई डू दैट जॉब? आई विल नेवर डू इट इन अ मिलियन ईयर. मेरी वाइफ इवन से दैट आई डोंट थिंक यू सूटेबल. इवन इफ यू हैड एन ऑप्शन, आई डोंट थिंक यू कैन जॉब. मैं आई एम नॉट डिजाइन फॉर इट. मेरे अंदर वो है ही नहीं. बट दे आर डूइंग इट. ऑल हेड्स ऑफ टू देम. आई एम श्योर दे डूइंग अ गुड जॉब. But you just said कि I'll get to know once I meet them in the field. Since you're not in the field yourself, why did you say that? No, there is a reason for it. देखिए, हमारे एक मीटिंग म्यूचुअल पॉइंट्स होते हैं कहीं ना कहीं. ऐसा नहीं कि आई डोंट रन इनटू पीपल. मैं अभी आई रन इनटू पीपल हियर. थाईलैंड एक ऐसी जगह है जो कि मेल्टिंग पॉट है. वहां पे सारी दुनिया की एजेंसीज जो हैं वो मिलती हैं कहीं ना कहीं पॉइंट पे, क्योंकि रेस्टोरेंट से एक ही होते हैं. सबका हैंग आउट एक ही जगह. वहाँ आपको मोसाद भी मिल जाती है, आपको रशियन भी मिल जाते हैं. हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो आइलैंड पॉइंट्स कहलाते हैं, वो मैं जाहिर बात उसका जिक्र यहाँ पे नहीं करूंगा सिविलियन के लिए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं. यहाँ भी कुछ ऐसी जगह होती है और दुनिया में कई ऐसी जगह होती है जो वी रन क्रॉस पैथ. कई दफा ऐसा होता है. कई दफा क्रॉस पैथ नहीं कर रहे होते, पर वी रिकग्नाइज ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर वट एवर वी आवर पास्ट आर. तो ये एक कॉमन डायलेमा है यहाँ पे इस फील्ड में. सो थाईलैंड में आई रन इनटू पीपल इन अ पास्ट, ऐसा कई दफा ना चाहते हुए. ऐसा नहीं कि मैं चाह रहा था. एक जगह मैं बैठा हूँ, एक जगह रशियन बैठे हुए हैं, एक तरफ मोसाद बैठी हुई है, एक तरफ कुछ और बैठे हुए, एक तरफ ईरान बैठे हुए, एंड वी वर इन द सेम प्लेस एंड वी ऑल न्यू कि हम किसके लिए काम करते हैं. We were there as a neutral place. हम लोग बैठे हुए थे. There was something going on and we walked out. सीरिया में मेरे साथ हुआ. I run into MI6 all the time क्योंकि वहां पर होते थे ऑपरेटिव्स. सो अभी अगर मैं अभी थाईलैंड जाऊंगा, ऐसा नहीं, मेरा थाईलैंड में भी घर मौजूद है. I'll be probably 2-3 वीक में मैं थाईलैंड जाऊंगा. सो वही आइलैंड में वही जगह होगी, तो आई नो आई रन इनटू सम ऑफ द गाइज. हाय हेलो तो होनी है. और दूसरी बात, जहां तक बात है मिडिल ईस्ट की, वेरी कॉमन प्लेस टू मीट पीपल. तो बाज दफा कुछ माजी के लोग होते हैं और कुछ अब आप चूंकि मिल चुके हैं, शक्ल तो जान चुका हूं, सो वी गोना रन पैथ्स वन वे और अदर. इसलिए मैंने ये कहा. बात अच्छी पकड़ी आपने बाय द वे. Right, interesting. So my next question is about आपके अपने जो ज़्यादातर मिशंस रहे
वो उसके अंदर जी आपने कभी एंगेज भी किया, और या ऑब्जर्व करना ज़्यादा रोल था? और अगर ऑब्जर्व करने के साथ एंगेज भी किया, तो डिड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वर यू फोर्स्ड टू पुल द ट्रिगर और स्टफ लाइक दैट? और या कोई फिजिकल कोई एक्शन हुआ जिसके अंदर बाद में हुआ कि शिट आई डिड रॉन्ग, या फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट दैट हैपेंड यू वर लाइक कि नहीं यार, आई डिडंट साइन अप फॉर दिस? जी नहीं जी, ये सिर्फ ऑब्जर्व नहीं होता, मेरे काम में ऑब्जर्व कभी भी नहीं होता, ऑलवेज एंगेजमेंट होती है। आई मीन बेसिकली चाहे आप वो लोकल लेवल पे कर रहे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो, इसको असाइनमेंट जब आपका होता है तो यू एंगेज फुल टाइम, बिकॉज जब आपका रोल इस बेसिकली, मेरा ख्याल अंग्रेजी में एक ही लफ्ज इसके लिए, वो है रोल प्ले। जब आप डाइव इन करते हैं किसी ऐसी चीज के अंदर, तो ये रोल प्लेइंग। अगर आप अलकायदा के साथ काम करें तो बेसिकली यू आर अलकायदा। अब जो अलकायदा ने करना है वो आपने करना है, चाहे वो आपको गन दे के बोले कि असैसिनेट दिस गाय, सो बिकॉज यूर, आपके पास एक्सक्यूज नहीं है, आप ये नहीं कर सकते लग्जरी, नहीं यार मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं कर सकता ये। यू हैव टू बी दैट गाय, चाहे वो आप चाइनीज स्नेक हेड माफिया के साथ काम करें, देन यू आर चाइनीज स्नेक हेड माफिया। सो मेरा जहां तक काम रहा है, जारी बात है, फुल एंगेजमेंट रहा है। एक और जो आपने सवाल किया कि यू नो एवर पुल द ट्रिगर, सो ये सवाल का जवाब मुझसे पाकिस्तान में भी किया था उन लोगों ने, और ये हर जगह पहले किया जाता है कि हाउ मेनी पीपल डिड यू किल। इसका आसान जवाब बगैर झूठ बोले ये होता है कि नोबडी विल एवर एडमिट व्हाट दे डिड। इसका क्यों? मर्डर की स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन नहीं होती, हर क्राइम की स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन होती है अमेरिका में। आपने कोई चीज चोरी की है, 4 साल स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन है, 4 साल के बाद आप इकरार जुर्म कर लें, वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। कत्ल एक वैसी वाहिद चीज है जिसका स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन नहीं है। सो अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज हुई है मेरी तरफ से या मेरी कार्रवाइयों से या किसी ऐसी चीज से, तो वो जाहिर बात है इस तरह नहीं हुई कि वो एक्सीडेंटल डेथ दिखी है किसी की, या कोई ऐसी चीज बताई गई है, या न्यूज में कोई ऐसी चीज आई कि एक्सीडेंटली कोई आदमी मर गया। तो अगर मैं यहां बैठ के उसका इकरार कर लेता हूं, तो आई एम गोइंग टू द ब्लैक एरिया नॉट द ग्रे वन, सो आई हैव टू प्ले इन अ ग्रे एरिया। सो अगर कोई मुझसे ये पूछता है तो फ्लैट आउट डिनाई गोना बी अ लाई, लेकिन इन सो मेनी वेज, क्योंकि इसका स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन नहीं होता, एंड आई कैन बी, अगर कहीं और हुआ है किसी और मुल्क में, अगर मुझे कहीं जाना है, तो इसका मतलब आई कैन चार्ज विद द मर्डर फॉर दैट क्राइम, क्योंकि अब मैं उस पार्ट में नहीं हूं। सो to answer your question, I hope you understand I'm trying to stay in a gray area, not towards the black. Interesting. Did you role play with Al Qaeda as well, and for how long? Yeah, of course. I was with Al Qaeda. मैंने Al Qaeda के साथ, I was with 7 years with Al Qaeda. 7 साल मैं Al Qaeda के साथ रहा हूँ। कभी फुटबॉल खेलने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, मैंने एक मार्का लड़ा, जो जारी बात है, एक मार्का तो इदलिब हुआ था, जिसको अलेपो कहते हैं अंग्रेजी में। एक मार्का तो इदलिब था, और मैं उस वक्त वहां था, क्योंकि आई वाज प्लेइंग अ लॉजिस्टिक गाय, आई वाज द लॉजिस्टिक गाय फॉर अलकायदा। मैं उनके लिए सामान सप्लाई कराता था, चाहे वो सर्वेलेंस होते हैं, कुछ टू वे रेडियोज, कुछ स्क्रैम्बलर्स, या ऐसी कोई चीजें, या कहते हैं उसको, तो मैं उनके सामान सप्लाई करता था, वेस्ट से बाय करके आई यूज्ड टू सेल इट टू अलकायदा। दैट्स व्हाट माय रोल वाज, अंडरकवर। और एक दफा जब मैं वहां पहुंचा तो मार्का इदलिब होने वाला था, दैट वाज द बैटल ऑफ इदलिब, जिसको इदलिब उल इज कहा जाता है। वो सबसे बड़ा मार्का अगर अलकायदा ने लड़ा है निजाम के साथ, बशार आर्मी के साथ, वो है मार्का तो इदलिब। तो आई हैपन टू बी देयर बैक देन। तो उसने मुझे, अमीर ने, जो मेरे अमीर थे, उन्होंने मुझे कहा कि वुड यू वांट टू, यानी ऑप्शन दिया, एक पूछा कि आप ज्वाइन करना चाहेंगे, तारीख का सबसे बड़ा मार्का, और मैं नहीं चाहता कि आप इससे महरूम हो जाएं। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल। सो आई पार्टिसिपेट इन मार्का इदलिब। सो आई फॉट मार्का इदलिब। वो 1.5 दिन का मार्का था, टोटल 1.5 दिन चला है वो, 1.5 डे। सो आई वाज फाइटिंग मार्का इदलिब उनके साथ। उसके बाद इदलिब फतह हो गया था, निजाम के हाथ से चला गया, और फिर अलकायदा के हाथ में आ गया था, आई वाज देयर फॉर ऑल दैट सेशन। और इंटरेस्टिंग। एंड तालिबान के साथ भी एंगेजमेंट रही? तालिबान के साथ मेरी रिमोट एंगेजमेंट रहती थी। तालिबान के साथ मैंने ऑफ कोर्स काम किया है, टीटीपी के साथ भी किया, तहरीक तालिबान के साथ भी, और अफगान तालिबान के साथ भी, लेकिन वो रिमोटली होता था काम। मतलब ये कि अब आई वाज बाइंग एंड सेलिंग, और या मनी ट्रांसफर वगैरह कोई चीज़, उनके जो काम होते थे, लेकिन मैं उनसे नहीं होता था। मेरे पास थर्ड पार्टी थी, यानी मेरा एक इन्फॉर्मेंट मौजूद था जिसके थ्रू मैं काम करता था। एक डीलिंग मेरी रही अदनान रशीद के साथ, जो कि जिन्होंने परवेज मुशर्रफ पे 2 हमले किए थे, तो उनके साथ एक डीलिंग मेरी रही थी, और उनके पास कुछ सामान था जो मुझे चाहिए था। उन्होंने, मैं बता देता हूँ, बल्कि ऐसा कोई ढकी छुपी बात नहीं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। तो एक अमेरिकन ड्रोन गिर गया था, जो उसके मुझे मुझे टास्क था खरीदने का। तो वो उनके पास पोजेशन थी उस ड्रोन की, तो वो हमारी एक डील चल रही थी, जो कि वो जाहिर बात है पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन अफगानिस्तान में बॉर्डर के बिल्कुल पास, तो उनसे काफ़ी इस हवाले से कुछ ताल्लुक रहा। तो बातचीत रही थी उनके साथ, तो उनके लोगों के साथ भी डीलिंग थी, और उस ग्रुप के साथ मेरी काफ़ी डीलिंग रही तालिबान के हवाले से। इट इज़ क्लेम्ड कि 2003 तक अमेरिका ने आके तालिबान को तबाह कर दिया था 2 साल के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान ने उनको हेल्प करना शुरू किया, उनको स्ट्रेंथन करना शुरू किया स्ट्रेटेजिकली, हर एतबार से, इंटेलिजेंस के एतबार से, और फिर $30 मिलियन भी दिए। व्हेन दैट वाज बीइंग डन,
वर यू पार्ट ऑफ इट, वर यू अराउंड समवेयर, और डिड यू नो अबाउट इट? आपको पता था? जो कि फिगर बढ़ती बढ़ती 2009-10 तक $110 मिलियन तक चली गई थी, जो कि पाकिस्तानी एजेंसीज दे रही थी तालिबान को। जी, आई मीन देयर वाज ऑलवेज अ चेयर, क्योंकि कीप इन माइंड कि मेरा काम जो है, मेरी ऑफिशियल डेस्क जिसको कहते हैं, मेरा डेस्क भी था। आई यूज्ड टू बी विद मिडल ईस्ट डेस्क। हमारे यहाँ दो डेस्क कंसिडर की जाती हैं टेररिज्म में, बल्कि डेस्क एक तो अफ्रीका AQIM वाली है, वो एक अलग डेस्क होती है। मैन आई वाज डीलिंग विद मिडल ईस्ट डेस्क। और ये जो डेस्क है इसको एफ पैक कहते हैं, ये नाम भी CIA का दिया हुआ है, एफ पैक। तो मेरा एफ पैक से कोई ऐसा करीबी काम रहा नहीं ज्यादा कुछ, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि मुझे मिडल ईस्ट ज्यादा पसंद था, मैं ज्यादा इन्वॉल्व था। तालिबान के अलावा जो था, ज्यादातर मेरी डीलिंग अलकायदा और दाइश के साथ मेरी ज्यादा थी। आई वाज डीलिंग विद बोथ सिमल्टेनियसली। उसके अलावा फिर एक और जमात थी, उसका नाम था जिंदुल अक्सा, जो कि सीरिया में ऑपरेट करती थी। वो द पार्ट ऑफ, तो हयात तहरीर शैम, उन लोगों के साथ मेरा ज्यादा ताल्लुक था। तो लिहाजा मैंने कुछ ज्यादा नो स्पोकिंग फॉर ऑब्वियस रीजन इस रीजन में की नहीं। इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू पोक इन सिमिलटेनियसली बोथ साइड। सो मैं जरा मिडिल ईस्ट में ज्यादा कंफर्टेबल था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ इंटरफेयर किया नहीं इन मामलात के अंदर। आई विश आपने नो स्पोक किया होता तो तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल जाना था, जो कि इधर होता रहा। अच्छा, टेल मी टू थिंग्स, व्हाट कम्स टू योर माइंड जब मैं ये दोनों चीज़ें बोलता हूँ, 9/11 और उसामा बिन लादेन?